Welcome to Aswani classes. Today in this video we are going to discuss more terms and results related to circle. In the previous video we already discussed about circle, its center, radius, diameter, segment, sector, secant, tangent, these things already discussed in circle part 1. In this part let us see few more results related to circle. First of all, see, this is a circle of center O. Okay, let us suppose AB is an arc. We already discussed about arc in part 1. This curve is called an arc. If you join AB, then it is called chord AB. Okay, there is another arc AB, CD. Okay, and this is chord CD. If this arc AB, if arc AB is equal to arc CD, then chord AB must be equal to chord CD. If these arcs are equal, then chord should also be equal. Secondly, if you join these end point A and B to the center of the circle, then this is called angle subtended by chord AB at the center. This is the angle subtended by chord AB at the center, or this is the angle subtended by arc AB at the center. This is the angle subtended by arc CD at the center. If this arc AB and arc CD are equal, then these two angles are also equal. Means equal chord subtend equal angle at the center, or you can say equal arc subtend equal angle at the center. If these arcs are equal, then these two angle must equal. Angle AOB must be equal to angle COD. This is first thing what you have to know. Second, which is most important, suppose this is a circle with center O. Okay, now let us suppose AB is a chord of the circle, O be the center of the circle, AB is a chord. Now from O draw a perpendicular. From center O draw a perpendicular. This is perpendicular on AB. Okay, if this is perpendicular, this is 90, so this angle will also be 90. Okay, now join AO and BO. You will find these two triangles are congruent by right angle hypotenuse side. See, in between these two triangles, these two sides are equal, because this and this both are radius of the same circle. This OM is common for both the triangle, and these two are 90 each. So both are right angle, their hypotenuse are same, and one side is common for both the triangle. So by RHS, right angle hypotenuse side congruence condition, this triangle and this triangle are congruent. And if these two triangles are congruent, then obviously these two sides will be equal. AM will be equal to BM. If two triangles are equal, their corresponding sides, corresponding angles are equal. So what we are getting, AB is a chord. If we draw a perpendicular from center to the chord, that perpendicular must bisect the chord. AM equal to BM
दिस shows OM bisect chord AB. क्या मिला रिजल्ट कि कोई सर्कल है, सेंटर है इसका, ये कॉर्ड है, एनी कॉर्ड CD. From here if you draw a perpendicular, this will bisect the chord. ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ये दोनों पार्ट इक्वल होगा. This what this result says. Secondly, see, there is a circle, center O, suppose MN be a chord, and let us suppose D is the middle point of MN. D is the middle point of chord MN. Now if you join this middle point with the center of the circle, if you join midpoint of the chord with the center of the circle, then OD is the line joining of the midpoint of chord MN and center of the circle. These two parts are equal because D is already taken midpoint. Then what will happen if you join OM and MN? Once again you will find these two triangles are congruent. How? DM equal to DN. This OD is common and these two are radius of the same circle, OM equal to ON. So all the three sides of this triangle are equal to the corresponding three sides of this triangle. So these two triangles are congruent. And if congruent, angle ODM, see in the figure, ODM, ये angle will be equal to ODN. ODN, ये दोनों एंगल बराबर होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा. एंड इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ओके, व्हाट विल बी देयर सम? ये दोनों इक्वल है और दोनों का सम कितना होगा? 180. अरे ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा आ जाएगा ना. सो दिस प्लस दिस विल बी 180 एंड दे आर इक्वल. सो each angle must be equal to 90. So we are getting, if you join the midpoint of the chord with the center, that line joining must be perpendicular on the chord. रिजल्ट ये मिला, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड का मिडिल पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन कीजिएगा तो ये परपेंडिकुलर होगा. अगर परपेंडिकुलर खींचिएगा तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा और मिडिल पॉइंट को ज्वाइन कीजिएगा तो अपने आप वो परपेंडिकुलर होगा. दिस रिजल्ट यू मस्ट नो. एंड फ्रॉम दीज टू रिजल्ट्स कंबाइनली वी कैन से, ये दोनों रिजल्ट को एक साथ मिला के आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक सर्कल है, सेंटर O है, AB इज ए कॉर्ड. अगर O से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो AB को बाइसेक्ट करेगा. अगर AB का मिडिल पॉइंट से O को ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा. मतलब AB का जो परपेंडिकुलर होगा और साथ में बाइसेक्टर होगा, वो दोनों सर्कल के सेंटर से पास करेगा. इफ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं ना. जैसे एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है AB, यू हैव टू ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. कंपास लेंगे हाफ से ज्यादा और ऐसा आर्क कट करेंगे. अगेन वी पुट आवर कंपास हियर एंड क्रॉस दिस टू, एंड इफ यू ज्वाइन, this will gives you perpendicular bisector of segment, line segment AB. In this way we can draw perpendicular bisector of a line segment. If you draw perpendicular bisector of this chord AB का अगर आप perpendicular bisector ड्रॉ करते हैं, मतलब perpendicular भी होगा और bisector भी होगा, तो वो जरूर सर्कल के सेंटर से पास करेगा.
ये बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा। एनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड मस्ट passes through the center of the circle. Perpendicular bisector of a chord of a circle must pass through the center of the circle. Okay, this is what is your result. This is one of the most important result कि if you draw any perpendicular bisector of a chord of a circle, that perpendicular bisector must pass through the center of the circle. ये इस सर्कल का सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। कोई भी सर्कल है, एज ए सर्कल एट सेंटर, टेक एनी कॉर्ड CD, इसका अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो वो जरूर सर्कल के सेंटर से पास करेगा। समझ गए? दिस इज व्हाट इज द रिजल्ट वी हैव गॉट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। This result we have got. Okay, ये रिजल्ट को ठीक से आप दिमाग में सेट करके रखिए। इसके बाद if there is a point, प्लेन में एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट? इस पॉइंट से कितना सर्कल आप खींच सकते हैं? 1, 2, 3, 4, इस पॉइंट से पास करेगा, 5। इन दिस वे यू कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ सर्कल्स। इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट से कितना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी। ओके, नाउ इफ देर आर 2 पॉइंट्स, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स? 2 पॉइंट से होके 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 circle. In this way, through 2 points also, infinitely many circles can be drawn. Through 1 points, infinitely many circles. From 2 points, infinitely many circles can be drawn. Now come to 3 point. If 3 points are there, so here 2 cases will arise. Whether all the 3 points are in a line, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है ऐसे, then how many circles can be drawn through these 3 points? No, if you draw a circle through these 2 points, this will be inside. If you draw a circle through these 2 points, this will be outside. If you draw a circle through this point, this will be outside. One point will be always outside or inside of the circle. If 3 points are in a line, if 3 points are in a line, they are said to be collinear. If 3 collinear points are there, then you can't draw a circle through all these 3 points. तीनों पॉइंट से होकर सर्कल ड्रॉ नहीं होगा। एक पॉइंट या तो इनसाइड होगा या तो आउटसाइड होगा। ओके, बट इफ द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, अगर एक ही लाइन में नहीं है, जैसे यहाँ है और यहाँ है, in this way suppose 3 points are there, A, B, C, then how many circles can be drawn through these 3 points? देखिए कैसे। You join AB is a line segment, you join BC
is also a line segment. Okay. Draw a perpendicular bisector of AB. इसका एक perpendicular bisector, perpendicular bisector समझते हैं, perpendicular as well as bisected. Draw the perpendicular bisector of BC. BC का perpendicular bisector खींच दीजिए. Means these parts are equal as well as perpendicular. Okay. Now let us suppose both the perpendicular bisector meet at a point. This point is suppose O. Okay. Now if this line is perpendicular bisector of AB, means O is a point on the perpendicular bisector of AB, then this distance and this distance will be equal. देखिए जरा यहाँ देख लीजिए, एक लाइन है ऐसा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये. ओके, ये मान लीजिए सेगमेंट ए बी है और ए बी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. नाउ इफ यू टेक एनी पॉइंट, इसमें कोई भी पॉइंट लीजिएगा P, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी. ये दोनों बराबर होगा. क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये बराबर है, ये 90 है, ये तो कॉमन है दोनों के लिए, तो इसका दो साइड और उसके बीच का एंगल 90 है. और इसका भी ये साइड तो कॉमन है दोनों का, ये साइड इसके बराबर है, ये 90 है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये PA और PB इक्वल होगा. मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई पॉइंट लेंगे तो दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पर होगा. So this is perpendicular bisector of AB. So OA distance and OB distance must be equal. इसी तरह से ये perpendicular bisector है BC का and O is a point on the perpendicular bisector. So OB and OC will also be equal. OA will be equal to OB and OB will be equal to OC. Now if you take this O point as center, O को अगर सेंटर ले लें और ये OA या OB या OC तीनों तो इक्वल है, उसको अगर रेडियस ले लें और एक सर्कल खींच दें तो इस तरह से एक सर्कल बनेगा थ्रू पॉइंट A, B and C. So in this way we can say through three non-collinear point one circle can be drawn. अगर तीन पॉइंट है जो कोलिनियर नहीं है, ऐसा एक ही लाइन में नहीं है, तो उससे एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. दो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक. वो कैसे? हाउ कैन वी से ओनली वन पॉसिबल? इज इट नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सेकेंड सर्कल थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? एक सर्कल तो होगा, ये तो देख लिए, एक से ज्यादा नहीं हो सकता. मीन्स थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट one and only one circle can be drawn. How? Let us see. Suppose three non-collinear points are there, A, B and C. One circle can be drawn that you have already seen. I want to say one and only one circle can be drawn through three गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. एक और सिर्फ एक होगा, दो नहीं हो सकता. ये हम लोग कैसे दिखाएंगे? दिस इज कॉर्ड ए बी, दिस इज कॉर्ड बी सी. इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, दे विल मीट एट ए पॉइंट ओ. एक पॉइंट ओ पर मिलेगा और ये ओ ए ओ बी और ओ सी डिस्टेंस इक्वल होगा, तो एक सर्कल पास होगा. ठीक है. Let us suppose there are two circle passes through the point ABC. हम लोग मान लेते हैं कि ABC से एक नहीं दो सर्कल पास होता है, दो अलग अलग सर्कल. Let us suppose two different circle passes through the point ABC. Okay.
if two different circle passes through the point ABC, then there must be two centers also, different center. नहीं, ए बी सी पॉइंट से अगर दो सर्कल पास कर रहा है तो दो अलग अलग सेंटर भी होगा अगर अलग अलग सर्कल है तो लेट अस सपोज वन सेंटर इज ओ एंड अनदर सेंटर इज एनीवेयर इट इज ओ डैश. मान लेते एक सेंटर ओ है, दूसरा सेंटर ओ डैश है. अगर दो सर्कल पास कर रहा है तो दो सेंटर होगा. ये सपोज किया कि एक सेंटर है ओ, दूसरा सेंटर है ओ डैश. ओके, इफ ओ एंड ओ डैश आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, then perpendicular bisector of AB and BC must passes through O as well as O dash. अगर सर्कल है, दो अलग अलग सर्कल है, उसी का क्वाड है ना AB और CD, तो क्वाड का जो बाइसेक्टर होता है वो सर्कल का सेंटर से पास करता है. तो अगर दो सर्कल है तो दो सेंटर होगा, एक O और एक कहीं मान लीजिए O डैश. तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ से भी पास करना चाहिए और ओ डैश से भी पास करना चाहिए. इट मींस देयर मस्ट बी टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. दो सेंटर तभी पॉसिबल है जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, एक ओ पर और एक ओ डैश पर. दो अलग अलग सेंटर अगर लेते हैं, लेकिन दो लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है. टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट वन एंड ओनली वन पॉइंट. सो टू सेंटर्स O and O dash are not possible. If we consider two center O and O dash different center, both the center will coincide. दोनों एक ही जगह मिल जाएगा. And hence we can say two circles through three non-collinear point A, B, C are not possible. इसलिए दो सर्कल पॉसिबल नहीं होगा. दो सेंटर पॉसिबल नहीं है, दोनों सेंटर कॉन्साइड कर जाएगा, दो सर्कल भी पॉसिबल नहीं है. एंड हेंस वन एंड ओनली वन सर्कल इज पॉसिबल थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट. सो इन दिस वे वी कैन से थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट वन एंड ओनली वन सर्कल इज पॉसिबल. ओके, दिस वाज वन रिजल्ट. देन आफ्टर one question comes, generally try to understand it. Suppose part of a circle given. मान लो एक सर्कल का पार्ट दिया हुआ है. AB is a part of a circle. पूरा सर्कल नहीं है, इसका एक पार्ट है. Can you draw the complete circle? सर्कल का अगर एक पार्ट दिया हुआ तो आप पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. लेट अस सी. वी ज्वाइन AB. We join AB and we draw the perpendicular bisector of AB. Okay. We join the perpendicular bisector of okay, no, in this way, just a minute. Suppose there is a part of a circle and question is complete the circle. Okay, this is the question. Can you draw the complete circle? You take a point C on the chord on the arc AB. एक point ले लीजिए C. Join AC and CB. Can you do? So AC and CB are the chord of the circle. जो पूरा सर्कल बनेगा उसका दो chord है. Now if you take perpendicular bisector of AC and perpendicular bisector of BC, both the perpendicular bisector will meet at a point O and this point will be the center of the circle whose chords are AC and BC. ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां कट करेगा ना, ये सर्कल का सेंटर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा. सो वी टेक दिस पॉइंट एज सेंटर एंड आइदर दिस और दिस और दिस, किसी को एक रेडियस लेके ऐसे सर्कल बना देंगे.
So in this way we can draw a circle, complete circle if its part is given. अगर उसका एक पार्ट दिया हुआ है तो हम लोग पूरा सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, नाउ one more thing I want to discuss. It will take hardly 10 minutes more. See, suppose this is a circle with center O. Okay, this is an arc AB, arc of a circle. Now if you join center O with A and B, then this angle is called angle subtended by the arc AB at the center of the circle. Okay, and this is arc AB and this is remaining part of the circle. Now if you take any point on the remaining part of the circle, P is a point on the remaining part of the circle. ये तो आर्क था ना, आर्क ए बी, और ये है रिमेनिंग पार्ट में एक पॉइंट भी है P. नाउ इफ यू ज्वाइन PA एंड PB, देन दिस एंगल इज ऑलवेज डबल ऑफ दिस. इसका डबल होगा ये. इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी 2 थीटा. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle. This is what is your theorem, you can say, or result. एक सर्कल है, इसका सेंटर है, इसका एक आर्क ले लीजिए AB. ये AB O पर जो एंगल बनाएगा ये डबल होगा. इसके रिमेनिंग पार्ट में कोई पॉइंट ले लीजिए, यहां जो एंगल बनेगा इसका डबल होगा. ये दिस पॉइंट इज P सपोज, मीन्स एंगल P से ये एंगल डबल होगा. ये है आपका थियरम. इन ऑर्डर टू प्रूव दिस, यू ज्वाइन PO एंड प्रोड्यूस, यहां तक मान लीजिए D तक. ठीक है, जरा देखिए, ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये और ये पार्ट इक्वल है. दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस. सो यू सी क्लियरली दिस टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा. सिमिलरली दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल. ओके, ये अच्छा, आप ये जानते हैं कि ये ट्रायंगल है. ट्रायंगल में अगर एक साइड को बढ़ा देते हैं तो दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, एंड दिस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. ये एक्सटीरियर एंगल है ना, इसके साथ वाला ये छोड़ के ये एंगल ये दोनों के सम के बराबर होता है. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर, ये उसका इंटीरियर है, ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है. ठीक है, तो देखिए यहां एंगल AOB, सी इन द फिगर, दिस एंगल is exterior angle. This will be equal to sum of these two. Angle A means OPA. OP OPA plus OAP. OAP ये होगा. ठीक है, और OPA ये और ये दोनों इक्वल है OAP, तो इसी का डबल कर देते हैं, 2OPA कर देते हैं इसको. ये दोनों एंगल बराबर है तो इसी का डबल कर दिए, इक्वेशन 1. फिर ये एंगल लीजिए, तो एंगल BOD, ये D है रे बाबा, OAOD ये D है, B नहीं, ये वाला पार्ट, ये एंगल ये वाला,
इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और ये दोनों इक्वल है तो इसी का डबल कर दिया। उसी तरह से ये वाला एंगल आ रहा है BOD, ये will be equal to this plus this and these two are equal, so we can write double of this, double of angle OPB। देखिए फिगर में OPB, इसका डबल कर सकते हैं, इसको ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOD, और इधर ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2 कॉमन, OPA मतलब ये एंगल प्लस OPB मतलब ये एंगल, ये दोनों को मिला देंगे तो APB आ जाएगा। एंड दिस साइड AOD प्लस BOD हो जाएगा AOB, एंगल AOB मतलब ये एंगल एट द सेंटर इज डबल एंगल APB इसका। In this way we can say angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle. Okay, now there is a circle, this is its center, this is an arc AB, you can say this is chord AB, P is a point on the remaining part of the circle, so this angle ये इसका डबल होगा, इसका डबल होगा, this is suppose X, this is suppose 2x, then what will be this x। एक दूसरा पॉइंट ले लीजिए ना, इधर मान लीजिए एक पॉइंट ले लिए Q, अब इसको ज्वाइन कीजिएगा तो ये एंगल का भी ये डबल होगा, तो ये 2x है तो ये भी x होगा। अगर कोई तीसरा पॉइंट ले लेते हैं ऐसे, ये भी x होगा। सो कहने का मतलब है कि ये एक सर्कल है, ये एक सेगमेंट है, अरे इसको मिला दिए तो ये एक सेगमेंट हो गया ना। ये एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये है मेजर सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट पर एक एंगल है, ये भी मेजर सेगमेंट पर एक एंगल है, ये भी मेजर सेगमेंट पर एक एंगल है। ऑल दिस एंगल्स आर इक्वल, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। माइनर सेगमेंट में भी इक्वल होगा, जैसे ये एक सेगमेंट है मान लीजिए, ये सेंटर, ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा, बिकॉज बोथ आर ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सो इन दिस वे वी कैन से एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में बनाया गया एंगल जो है हमेशा बराबर होता है। ठीक है, चलिए एक रिजल्ट और 2 मिनट। एक सर्कल है, इसका सेंटर है, ये डायमीटर है AB, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, लेकिन ये हाफ सेगमेंट है पूरा। तो यहां कोई अगर पॉइंट लीजिएगा P, तो ये एंगल इसका आधा होगा, यानी इसका डबल होगा। ये तो सीखे थ्योरम में ना, ये एंगल डबल होता है इसका, ये डबल होगा। ये कितना है, ये 180 डिग्री है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। तो अगर कोई सर्कल है और ये उसका सेमी सर्कल है, इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल दिस विल बी 90 डिग्री। कहीं भी, इधर भी ले सकते हैं, नीचे भी, ये एंगल आपका होगा 90 डिग्री। ये सेंटर है मान लीजिए। एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। हाफ सर्कल में कोई एंगल लीजिएगा तो वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये एंगल जो है इसका हाफ होगा, ये 180 है, ये एंगल इसका हाफ होगा, ये 180 है, इसलिए सर 90 होगा। सो इन दिस वे वी कैन से एंगल
in the semicircle is 180 degree. Okay, sorry, 90 degree. Angle in the semicircle is 90 degree and angle in the same segments are equal. जैसे ये सर्कल है, इसका एक सेगमेंट है, ये एंगल इन द सेम सेगमेंट, जैसे ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एंगल है, ये सब एंगल जो है सेम सेगमेंट पर है, तो ये सब इक्वल होगा. ऐसे अगर एंगल लेते हैं, ऐसे लेते हैं, तो ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट का एंगल है, तो इक्वल होगा. एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. Angle in the semicircle is 90 degree. So these are the results in this part 2. So in this part this much. Thank you for watching. In the next part we discuss few more results related to circle. Thank you for watching.